ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਲਾਫਾਇਟ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ 20th ਆਫ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਔਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾय ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਇਹ ਵਰਡ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭੋਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਮਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਸਟ ਅ ਨੋਰਮਲ ਗਾਏ। तो he will tell you his story। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਉਰੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਈ ਜੀ, you want to say something? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। If you're Kisan, if you're oppressed by any type of government, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ। This is the time to stand up for your rights. This is what our shaheeds do. This is what they're doing in India. This is what it's about. Yeah. So ਐਵੇਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ शहीदों की कौम पर लगेंगे हर बस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही निशान होगा। सो देखो भी भाजी इतनी दूरों तुर के आए ने, you know, and this protest has been going on for 39 years। You know, you guys have met brother Philippos ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਦਿਨੇ। ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, you know, ਐਂਟੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ LA ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਆ। ਸੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਫ੍ਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਜਾਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਟਾਕਟਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਹੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਓ ਜਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਸਟ कोस्ट ਉੱਤੇ। हाउ इज वेस्ट कोस्ट गोइंग? जस्ट टेल देम द प्रोटेस्ट। भी अपने आप हिंदी में बोल सकते हो कि आप थोड़ा इनको बताओ कि वेस्ट कोस्ट पे यानी कैलिफोर्निया और उधर कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, हर हफ्ते हो रहा है, कभी हो रहा है कि हो नहीं रहा, कैसे? व्हाट डू यू थिंक? See, LA ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। San Francisco ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। It's not like Frisco, the Bay Area. I feel like it's more proactive. Oh, yeah. But ਜਿਹੜਾ LA the protests I got, it's not as active, not as organized. Yeah. But it's not bringing as many numbers as it did maybe 3 months ago. Numbers are dying down. But Los Angeles, Sangat, we need more. We need more organization. We need more protests. And we need to get out there। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਾਈ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਤਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆ ਕੇ ਢਾਹ ਲਾ ਦੇਊਗਾ ਉਹ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਫਸਟ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੈਲ ਮੇਕ ਨੋ ਲਾਅ ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਐਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ। ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਟਿੰਗ ਦ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਦੇਅਰਫੋਰ ਅਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਦ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ or the right of the people to peacefully assemble and to petition the government to readdress the grievances। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਆਪਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗੀ। ਸੋ ਆਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੁਵਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਰਟੀਕਲ 19 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੇਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ उनसे भी बात कर रहे हैं हम, जो लोग इंडिया में ये सोचते हैं कि जिनको जेल में डाला गया है वो आतंकवादी हैं, भैया आपसे पूछना चाहते हैं कौन सा हथियार लेके वो बैठे हैं? उनके पास जो हथियार है उसका नाम है फोन। वो सच दिखा रहे हैं, नैरेटिव तोड़ रहे हैं सरकार का। सो भैया फोन पे वीडियो बनाने वालों को, सच बोलने वालों को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। वो आर्टिकल 19 की उल्लंघना है, हमारा फंडामेंटल राइट है।
और आपको बता दें जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं लोग, आप बैठे हो भैया, अगर if you guys are in America, Canada or anywhere in the free world, you have Fair Standard Labor Act where you have minimum wage. Indian farmer is asking for minimum wage. If you cannot give an Indian farmer minimum wage, isn't that a human, violation of the human rights? Isn't that the violation of a human right? Isn't that taking away food from table of the families? ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 45% ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। I want to ask these netas, they say that this is a political thing, भारतीय किसान संघ जो आरएसएस का किसान विंग है, जो बोलता है कि भैया हमारे साथ 2.5 मिलियन लोग हैं, हम उनसे सीधा सवाल पूछते हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं ये किसानों का आंदोलन नहीं है, पॉलिटिकल आंदोलन है। सो अपने बच्चों के लिए खाना मांगना, खाने मांगने का हक पॉलिटिकल आंदोलन है क्या? ये धार्मिक आंदोलन है, ये सामाजिक आंदोलन है, ये ह्यूमन राइट का आंदोलन है, बेसिक मनुष्य अधिकारों का आंदोलन है। सो हम अपना आंदोलन कर रहे हैं शांतमयी तरीके से, और वॉशिंगटन डीसी, सेनेट और कांग्रेस में इसकी गूंज हो रही है बराबर, और ये गूंज बढ़ेगी। ये वॉशिंगटन डीसी की गूंज जाएगी गांव गांव में हर अमेरिका के, और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, अमेरिका के किसान इसमें जुड़ेंगे। सो आपको बता रहे हैं, हल्के में ना लिया जाए किसी बात को। दिसंबर में आपको बताया था कि हम बच्चे हैं इस देश के, हम संगठित नहीं थे, हमें बोलना भी नहीं आता था, हमें कुछ नहीं आता था, ठीक है ना। हम एक नॉर्मल बंदे थे जो कॉर्पोरेट जॉब में काम करते थे, पर आप वहां को दिल से विनती कर रहे थे, तो आपने बात नहीं मानी। अभी भी मान लो, बच जाओगे हल्के में, वरना मुश्किल आएगी आपको, सरकार गिरेगी आपकी। और आपको ये बता रहे हैं कि भैया ये देश हमारा है, सबसे ऊपर रखेंगे अपने देश का झंडा, पूरा करके रहेंगे किसान एजेंडा। सो संगठित होंगे, सत्याग्रह करेंगे, और संविधान के दायरे में रह के इस कानून को भी वापस करवाएंगे, और एमएसपी का कानून भी लागू करवाएंगे। और जितने हमारे भाई जेलों में हैं, चाहे वो कोई भी है, किसी ने कोई हथियार नहीं उठाए स्टेट के खिलाफ, उसने पीसफुली प्रोटेस्ट किया है, चाहे उसने प्रोटेस्ट कहीं भी किया हो, उस लोकेशन, अगर वो लोकेशन सॉवरन इंडिया के फ्री लैंड में है, उसको जेल में रखना नाजायज है। किसी ने कोई हथियार नहीं उठाया आपके खिलाफ। सो आप जो बंदों को कर रहे हो, सबको रिहा करो। और आपसे विनती नहीं कर रहे, आपको खुला अल्टीमेटम दे रहे हैं, खुला अल्टीमेटम, कि आपकी सरकार को हम बीच में से फाड़ देंगे। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। वॉशिंगटन डीसी में गूंज रही है किसानों की आवाज, कल को पहुंच जाना सब 12 बजे। और ये सारा बता दिया जाए इंडियन गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता दिया जाए कि भाई साहब आप हल्के में ना लें, ये वो टाइम नहीं रहा। हमारा देश सारा जागरूक है, युवा सब जुड़ चुका है, संगठित है, और आवाज गूंजेगी पूरे फ्री वर्ल्ड के हर शहर में। वी विल मेक श्योर कि वो हो। सो आप हिसाब लगा लो कि आपने अपनी जड़ें कटवानी है क्या। सो अपना हिसाब आप लगाओ, नुकसान होगा आपका। हम तो ये जंग जीतेंगे, निश्चय करके जीतने वाली ये कौम कभी पीछे नहीं हटती भैया। हम देश के दुश्मनों को भी हराएंगे बॉर्डरों पे, भूखमरी से भी लड़ेंगे, और देश को भी जिताएंगे। और आप ये नीति वापस लेनी कब है वो आपको सोचना है। और जो ये आप तंग करके युवाओं को जेलों में डाल रहे हो ना भैया, हमारे बुजुर्गों को वाटर कैनन मार रहे हो, 308 से ज्यादा आपने शहीद कर लिए, एक 1.25 लाख से भारी पड़ने वाला आपको हर इलेक्शन में आपको दिखा दिया जाएगा भैया। बंगाल के शेर दिखाएंगे पहले आपको, सिंसिनेटी में टीम है बंगाल टाइगर्स, ठीक है ना। हल्के में ना लिया जाए, पूरे इतिहास में पूरी दुनिया को पता है कि बंगाली टाइगर होते हैं, ठीक है ना, ये आपको ही नहीं पता, ठीक है ना। सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट और जिसको आप राष्ट्रवाद बोलते हो, उनसे पढ़ लेना भैया, रविंद्रनाथ टैगोर जी की ऐसे पढ़ लेना, ठीक है ना। और दिन रात प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे व्हाइट हाउस के सामने, और ये फिर से आपको विनती कर रहे हैं कि भाई साहब अपने अंदर देखो, थोड़ा संविधान की पालना करो, संविधान सुबह उठ के पढ़ा करो दिन में एक बार। मतलब प्रेम्बल की बात कर रहे हैं, संविधान पढ़ने का तो मेरे को पता आपका टाइम नहीं, आप बोलोगे हम 18 घंटे काम करते हैं, हम सोते ही नहीं है, देश के लिए काम ही हम कर रहे हैं, वो ठीक है, आपकी बात मान ली। प्रेम्बल एक पहली पौड़ी के पाठ की तरह है भैया, जपजी साहब के, ठीक है ना, उसको पढ़ लिया करो। इक्वल अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, लिबर्टी हमारे पास, हर चीज को बोलने की, हर चीज को मानने की, और धर्म की फिरका परस्ती में हम नहीं बटेंगे आपके, ठीक है ना। सो आपको विनती नहीं कर रहे, खुला अल्टीमेटम दे रहे हैं, बिल वापस ले लो, वरना अच्छा नहीं होगा आपकी सरकार के लिए। देश तो हमारा हमेशा उज्जवल था, उज्जवल रहेगा, किसान उज्जवल था, उज्जवल रहेगा, और हम अपने आखिरी सांस तक उसे उज्जवल बनाने के लिए लगा देंगे। हम अपनी जिंदगी इस चीज के लिए समर्पित कर देंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, किसान एकता जिंदाबाद। कल सुबह मिलेंगे 12 बजे, लिंकन मेमोरियल, वॉशिंगटन डीसी।
देखो लाइव बंद ही नहीं होना चाहता, कह रहा है भैया फोन हैंग हो गया। सो फिर से जब तक वीडियो कॉल चल रही है तब तक आपको बता रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी 12 बजे कल को लिंकन मेमोरियल, अगर आपके